الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين مرة آيات فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جانے ہیں وہ جہان کی، جانے ہیں تو جہان ہے۔ سب نے مل کے پڑھنا ہے صلی اللہ آمد مصطفیٰ ہوئی، روشن زمانہ ہو گیا،
آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمان، اور جس کے حضور ہو گئے بعد از حمد و ثنا آج کی اس پیاری پرنور تقریب بسلسلہ ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میلاد کے پروگرام میں آج ہم سب حاضر ہیں۔ سبحان اللہ۔ مقصود بھائی کی آمد پہ ہم سب کی یہاں پہ حاضری ہوئی، اور بالخصوص سرور حسین قادری صاحب، اللہ رب العالمین آپ کے درجات بلند فرمائے۔ کس پیارے انداز سے سرکار کی ثناخوانی کرتے ہیں کہ دل کرتا ہے پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، اور بالخصوص آج کی یہ جو پیاری محفل ہے یہ کوئی معمولی محفل نہیں، بلکہ یہ وہ محفل ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جو آخری آیت مبارکہ پڑھی اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے کر رہے ہیں سورہ صف کے اندر۔ تو ہم یہ سمجھیں گے آپ سب نے سبحان اللہ کا ورد جاری رکھیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم آج کے بیان سے بہت ساری چیزیں سیکھ کے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ حاضرین و سامعین، اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ بات سمجھیے گا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہی ہم کرتے ہیں، بلکہ اللہ کا قرآن تو دیگر انبیاء کی آمدوں کے تذکرے بھی فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ جب کہا حضرت عمران کی زوجہ نے کہ اے میرے رب جو کچھ میرے شکم کے اندر ہے میں نیت کرتی ہوں، میں منت مانگتی ہوں کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا تیرے گھر کے لیے اسے وقف کر دوں گی۔ حضرت عمران کی زوجہ بیمار ہوئیں تو منت مانگی، کہا کہ مولا تو مجھے اولاد بیٹا دے یا بیٹی دے، جو بھی میری اولاد ہوگی، جو مسلمانوں کا اس وقت کا کعبہ تھا بیت المقدس، اس گھر کے لیے میں اپنی بچی کو قربان کر دوں گی، بچہ ہو یا بچی ہو جو کچھ بھی ہو مولا تیری راہ میں دے دوں گی۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی۔ اور میرا رب اتنا کریم ہے، جس کو چاہے جو عطا کر دے، کسی کو چاہے تو بیٹی دے دے، جس کو چاہے تو بیٹا دے دے، یہ میرے رب کی تقسیم ہے، اس میں کوئی بول نہیں سکتا۔ فلما وضعت قالت رب انی وضعتها انثی۔ جب وضع حمل مکمل ہو گئی، جب مدت مکمل ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے بیٹے کے بجائے بیٹی اللہ نے عطا کر دی۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ خوب بہتر جانتا ہے کہ جو اس نے اپنی بندی کو عطا کیا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ۔ حضرت مریم کی ماں کہتی ہیں، حضرت عمران کی زوجہ کہتی ہیں اے میرے خاوند اللہ نے مجھے بیٹے کے بجائے بیٹی عطا کر دی ہے، مگر میں نے اللہ کے حضور منت مانگی تھی، میں اپنی منت کو ضرور پورا کروں گی۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، جب اللہ نے ان کی ہاں بیٹی کو پیدا کیا تو ان لوگوں نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا۔ اللہ نے اپنے اس کلام کے اندر اپنی ولیہ کے میلاد کو بیان کیا۔
सुभान अल्लाह। किसको बयान किया? अपनी महबूब वलिया जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मकबूल तरीन वलिया थी। लोग हमें कहते हैं कि नबी का मिलाद क्यों करते हो? अल्लाह का कुरान तो अपने महबूब वली की विलादत का बयान कर रहा है। सुभान अल्लाह। किसका बयान हो रहा है? महबूब वलिया की मिलाद, विलादत। मिलाद समझिएगा, मिलाद ज़र्फ़ लें या मकान लें, माना बनता है या तो पैदा होने की जगह या पैदा होने का वक्त। ये मिलाद होता है। हम सरकार के मिलाद में करते क्या हैं? सरकार की आमद के तस्करे करते हैं, सरकार की विलादत के तस्करे करते हैं। ये अल्लाह की सुन्नत करीमा है कि अल्लाह अपने महबूब वलियों की मिलाद को भी कुरान में बयान फरमाता है। व इन्नी सम्मैतुहा मरियम व इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश्शैतानिर रजीम। जब ये बच्ची पैदा हो गई तो इस बच्ची का नाम रखा गया मरियम। और उनकी माँ ये दुआ करती है कि ए अल्लाह, मैं अपनी बेटी को तेरी पनाह में देती हूँ शैतान मरदूद से। फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन व अंबतहा नबातन हसना व कफ़्फ़लहा ज़करिया। अल्लाह के नबी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का दौर है ये, और रिश्ते में हज़रत मरियम के मामू भी लगते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले हज़रत मरियम के मिलाद को बयान किया। अब जब हज़रत मरियम की विलादत हो गई तो इनकी माँ और वालिद गए, हज़रत इमरान गए, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम वो उस वक्त वहाँ के इमाम भी थे, अल्लाह के नबी भी थे। अपनी मन्नत लेके हाज़िर हुए कि या सैयदी, हमने मन्नत मांगी थी और हम अपनी मन्नत को पूरा करना चाहते हैं। हमने बेटा मांगा था, अल्लाह ने बेटी दी, हम अपनी मन्नत को पूरा करेंगे, अपनी इस बेटी को हम अल्लाह की राह में देने के लिए तैयार हैं। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मंज़र को बयान फरमाता है कि इन लोगों ने अपनी बेटी की कफ़ालत हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के हवाले कर दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि वकफ़्फ़लहा ज़करिया, और इस बच्ची की किफ़ालत हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के हवाले कर दी गई। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ये ज़िम्मेदारी थी, आपकी ड्यूटी में शामिल था कि आप बच्ची को सुबह का नाश्ता भी देते, रात का खाना भी देते। ये अल्लाह की वलिया रात को भी अल्लाह की इबादत करती, दिन को अल्लाह के हुजूर रोज़ा रखती, अल्लाह की बंदगी करती। आपकी ज़िंदगी के शब रोज़ इसी तरह गुज़रते रहे। एक दिन हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन की सरज़मीन से बाहर जाना पड़ा। आप एक शख्स की ड्यूटी लगा के जाते हैं कि इस बच्ची का ख्याल रखना, वक्त पे सहरी भी दे देना, जब इफ्तार का वक्त आए तो वक्त पर इफ्तारी भी दे देना। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन की सरज़मीन से निकलते हैं। निकलने के बाद आप ये ज़िम्मेदारी सौंप कर अपने नायब को देकर चले जाते हैं। जब आपकी वापसी होती है तो अपने नायब से पूछते हैं कि सुनाओ, उस बच्ची को खाना देने गए या नहीं गए? वो शख्स कहता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे जहन से ये बात उतर गई कि मैं उस बच्ची को खाना देने चला जाऊं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस प्यारे वाक़े को अपने कलाम के अंदर बयान फरमाता है कि कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मिहराब वजदा इंदहा रिज़्का। जब अल्लाह के नबी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में बैतुल मुक़द्दस में वापसी आते हैं, उस मुकाम पर पहुँचते हैं जहाँ पे अल्लाह की वलिया अल्लाह की इबादत करती। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मिहराब, जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मिहराब मरियम में दाखिल होते हैं, वहाँ पे वजदा इंदहा रिज़्का, वहाँ पर बेमौसमे फल देखते हैं। जब मेहराब मरियम में अल्लाह के नबी दाखिल होते हैं, वहाँ पे बेमौसमे फल देखते हैं। वो फल देखते हैं, हम कहते हैं कि अल्लाह का वली कर क्या सकता है? अल्लाह का वली तो बेमौसमे फल भी ला सकता है अपने पास। सरकार का मिलाद है तो अल्लाह वालों का भी जिक्र हो जाए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम दाखिल कुल्लमा दाखला अलैहा ज़करिया मिहराब वजदा इंदहा रिज़्का। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी देखते हैं कि इस बच्ची के पास तरह तरह का रिज़्क़ हैं। तो अल्लाह के नबी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उस बच्ची से मुखातिब होकर कहते हैं कि क़ाला या मरियम
अन्ना लकी हादा, और दुनिया वाले हमें कहते हैं कि या रसूल अल्लाह क्यों कहते हो। अल्लाह के नबी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम से मुखातिब होके कहते हैं कि क़ाल या मरियम, ए प्यारी बेटी मरियम, अन्ना लकी हादा, ये सारे का सारा क्या है, ये रिज़्क़ तेरे पास कहाँ से आता है। तो अल्लाह की वलिया जवाब देती है कि क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये मैं नहीं कहता, ये अल्लाह का कुरान सूरह आल इमरान कह रही है, यही पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, ये हमारा बयान है। तो अल्लाह के नबी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मुखातिब होकर कहते हैं कि बेटी क़ाला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ये सब कुछ है क्या, कहाँ से आया है तेरे पास। तो अल्लाह की वलिया जवाब देती है क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, मेरे पास जो कुछ भी आता है मेरे रब की तरफ से आता है मेरे पास। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बग़ैर हिसाब व किताब के रिज़्क़ अता फरमा देता है। आज हमारा सबसे बड़ा रोना जो है वो रिज़्क़ का है कि रिज़्क़ कहाँ से मिले। ये अल्लाह की वलिया कहती है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैर हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बग़ैर हिसाब व किताब के रिज़्क़ अता फरमा देता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ये सारे मामलात, ये मुजाहिदात, ये अल्लाह कुरान में बयान फरमाता है। इस करामत को, इस पूरे वाक़यात को, फिर हज़रत मरियम के मीलाद को, फिर इसके बाद अल्लाह के नबी का मीलाद आएगा अगली आयात के अंदर, हम वो भी सुनते हैं। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कहते हैं कि कितनी महबूब अल्लाह की वलिया है, रात भी इबादत दिन भी रोज़ा। जब मैं इसके पास आया तो बेमौसम फल, कुल्लमा दाखला अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा, फिर कहते हैं कि काला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, के प्यारी बेटी मरियम ये क्या है। तो अल्लाह की वलिया जवाब देती है क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, मेरे पास जो रिज़्क़ भी आता है ये अल्लाह की तरफ से आता है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। आज हमने एक चीज़ सीखनी है कि हम रिज़्क़ के लिए परेशान कभी नहीं होंगे। रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है, उसने वादा किया है। और अल्लाह की वलिया कहती है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बग़ैर हिसाब व किताब के रिज़्क़ अता फरमा देता है। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उस उम्र में पहुँच चुके थे जिस उम्र में अल्लाह औलाद नहीं देता। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं थी। अल्लाह की वलिया को करामत देखा, अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को बुलंद कर दिया। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, अल्लाह के नबी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ में मशगूल हो गए, अल्लाह से दुआ मांगते हैं और कहते हैं क़ाला रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। एक अकीदा हमें और मिला यहाँ से कि जहाँ पर अल्लाह के वली अल्लाह की इबादत करें वहाँ पे अल्लाह दुआएं कबूल करता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है वहाँ पे दुआ मांगना।